MCOM Part 2 Semester 4 Personal Financial Planning PFP. What we are doing? We are doing unit number 3, that is Retirement Planning and Employee Benefit. तो एक हमने देख लिया प्रोविडेंट फंड, दूसरा ऑप्शन क्या है रिटायरमेंट के बाद का, एम्प्लॉयर ने दिया हुआ नेशनल पेंशन स्कीम। ये वॉलेंटरी है, एम्प्लॉय चाहे तो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है अपनी सैलरी में से, ऑब्वियसली सैलरी में से आपके कट होगा उतना अमाउंट। ओके, ये भी कब आया था? 2004 में, जब भारत आज़ाद नहीं था। The National Pension Scheme (NPS) is voluntary long-term retirement savings schemes launched by the Government of India in 2004 to provide financial security to individuals after retirement. Initially introduced for government employee, it was later extended to all citizens in 2009, allowing both salaried and self-employed individuals to systematically build a retirement corpus. NPS is regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA). Okay, and others offers a flexible, low cost and tax efficient investment option that ensures steady post retirement income. ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको अच्छी इनकम मिलती रहे, बराबर, एनकरेजिंग लॉन्ग टर्म सेविंग, प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, क्रिएट सस्टेनेबल पेंशन सिस्टम, ऑफरिंग टैक्स एफिशिएंसी सेविंग। फीचर्स ऑफ एनपीएस क्या है? एक, ड्यूअल बेनिफिट, आपको पेंशन भी मिल रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, बराबर है। रेगुलेटेड एंड सेल्फ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अथॉरिटी बैठी हुई है क्या? पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जब बैठी हुई है तो आपका पैसा सेफ होना चाहिए, ऑब्वियसली स्पीकिंग, मतलब वेरी लॉजिकल एंड वेरी लॉयल, ये सिक्योर्ड हो सकता है या है बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्ट्रीब्यूशन एज इट इज के यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, वॉलेंटरी है, तो वॉलेंटरी मटेरियल आपको ऑब्वियसली लिमिट देता है कि आप चाहो तो करो, चाहो तो मत करो, बंद कर दो बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं। चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजर, तो एनपीएस प्रोवाइड्स द ऑप्शन टू चूज बिटवीन टू इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस। एक, एक्टिव चॉइस, द इन्वेस्टर कैन डिसाइड द परसेंटेज ऑफ फंड टू बी एलोकेटेड टू डिफरेंट असेट। दो, ऑटो चॉइस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया, अपने आप को दे जाएगा। द फंड्स आर ऑटोमेटिकली एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइबर्स एज, reducing risk exposure as retirement nears. Additionally, investors can select their pension fund manager from a list of government approved entities and have the option to change the fund manager if required. Okay. Portability access job locations. Unlike employer specific pension scheme, NPS accounts are portable and remain active even when changing jobs are moving to different locations. Okay, एक जॉब छोड़ के दूसरे में चले गए, दूसरे से तीसरे में चले गए, तो भी ये स्कीम चालू रहती है। This makes it an ideal retirement solution for professionals working in the private sector, self-employed individuals and government employees alike. Tax benefit under NPS, yes, मिलता है। Okay. Employee can claim a deduction up to 10% of salary, basic and DA, or 1.5% per annum under 80C. 80CC-D के अंदर deduction of 50,000 available over and above section 80C. By default ये lump sum मिल जाता है आपको। 80CC2 के अंदर employer's contribution to an employee's NPS account can avail corporate tax benefit ensuring employer's participation. Tax-free withdrawal at 80 या 60% of the corpus retirement के वक्त can withdraw tax-free, while remaining 40% must be used to purchase an annuity, ensuring regular pension income. Withdrawal rules and exit options. चाहो तब आप निकल सकते हो। NPOs follow structured withdrawal rules to ensure financial stability post retirement. At retirement यानी कि 60 साल की उम्र पे इन्वेस्टर कैन विड्रॉ 60%, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा 40% उसको एन्युटी में डालना है। प्री मैच्योर एग्जिट 60 साल के पहले अगर है, बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर बांधने के लिए, रिपेयर करने के लिए, तो उतना जिसका चाहिए वो लिमिट एक सेट किया जाता है और उसके हिसाब से विड्रॉल अलाउड है। पार्शियल विड्रॉवल्स up to 25% of contribution can be withdrawn after 3 years for purpose such as medical emergencies, higher education, home purchase or business expansion. Okay. Types of NPS कितने कितने हैं? तो टायर 1 रिटायरमेंट अकाउंट है। This is a primary NPS account meant for long-term retirement savings. Okay, lock-in period until the age of 60 years. आपको रिटायरमेंट तक, इंश्योरेंस के भी कुछ है वैसे, कि आप 60 साल तक उसको प्रीमियम देते रहो, 60 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती रहेगी।
कब तक? जब तक आप परमानेंटली सो नहीं जाते, टाटा बाय बाय नहीं कहते। ओके, offers tax benefit under 80CCD and 80CCTB. Okay, mandatory for government employees while voluntary for others. देश के लिए काम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर देना, प्राइवेट वाले कहाँ कुछ करते हैं। टायर 2 voluntary saving accounts acts as a flexible saving accounts allowing unrestricted withdrawals, no tax benefit unless the subscriber are government employee. Functions more like a mutual fund account, allowing investment in equity and debt market. No lock-in period, make it suitable for short-term financial goals. Okay, ये टाइप्स हो गए आपके एनपीएस के। एनपीएस के एडवांटेज, ऑब्वियसली रिटायरमेंट आपकी अच्छी जा रही है, आपकी सेविंग्स की वैल्यू बढ़ रही है, आपको इन्फ्लेशन के साथ खर्चा मैनेज करने के लिए बैलेंस हो रहा है, बराबर है। एंश्योर्स रिटायरमेंट सेविंग डिसिप्लिन, मार्केट लिंक रिटर्न्स फॉर हायर ग्रोथ, inflation adjusted retirement income, low cost and transparent structure, financial security for non government employee, बराबर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो अपना है ऑप्शन नंबर 3, पहला हमने देखा, पहला क्या देखा रे, आइला मेरे को याद ही नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट। ओके, और दूसरा पीपीएफ। अब आया पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड तीसरा। ओके, ये भी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ही चलता है, गवर्नमेंट के पास ही अपना पैसा जाता है अपनी सैलरी में से, और फिर आपको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिलते रहता है। द पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1968 to encourage individuals to build a retirement corpus while enjoying tax benefit. It is safe and secure investment option backed for sovereign guarantees, making it ideal for risk-averse investors. Okay, the scheme is managed by Ministry of Finance and is available through banks and post office across India. PPF is particularly beneficial for salaried individual, self-employed professional and those without access to employer provided retirement benefit as it offers stable returns, बराबर, excuse me, tax exemption and long-term financial security. The 15-year lock-in period ensures disciplined saving, while partial withdrawal and loan facilities make this flexible investment option. पीपीएफ में आपको सेविंग कितने साल के लिए करनी है? मिनिमम 15 ईयर्स। उसके बाद आप पैसा ले सकते हो जब जब चाहो तब तब, जितना चाहो उतना, मतलब जितना डिपॉजिट है उतना ही मैक्सिमम, वरना बोलोगे जितना चाहो उतना, करोड़ों मांगोगे तो नहीं होगा। फीचर्स ऑफ पीपीएफ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बराबर है, अट्रैक्टिव फिक्स इंटरेस्ट रेट, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स, बराबर, फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन लिमिट, क्योंकि आप चाहो उतना आप उसमें डाल सकते हो, पार्शियल विड्रॉवल फैसिलिटीज, लोन फैसिलिटीज अगेन पीपीएफ बैलेंस, सिक्योर एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, अकाउंट पोर्टेबिलिटी अक्रॉस इंडिया, आप कहीं पे भी जाओ इधर का पैसा उधर ट्रांसफर हो सकता है, आइदर बैंक से या पोस्ट ऑफिस से। मैंने वसई में बैंक में अकाउंट खोला, लेकिन मेरी कहीं पे मैं चला गया, अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन उधर बैंक है ही नहीं, पोस्ट ऑफिस है, I can transfer my PPF to post office. Okay. Eligibility and account opening. Who can open? Any Indian, any. प्राइवेट वाला है, पब्लिक वाला है, कोई भी। वेयर कैन यू ओपन? तो जैसे मैंने बताया बैंक में और पोस्ट ऑफिस में, बराबर है, 500 रुपये से शुरू हो सकता है। एडवांटेज ऑफ पीपीएस, आइडियल फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, 15 साल के लिए ब्लॉक ही है तो अच्छी बात है। एनकरेजेस डिसिप्लिन सेविंग, बराबर है। टैक्स बेनिफिट अंडर 80C, inflation beating returns, no market link risk, लोन एंड पार्शियल विड्रॉल ऑप्शंस जरूरी है, आपको इमरजेंसी में मिल जाते हैं, सूटेबल फॉर ऑल इनकम ग्रुप्स। 500 रुपये से जिसकी सेविंग शुरुआत है कोई भी उसमें डाल सकते हैं। अटल पेंशन योजना, ये आई 2015 में, एक्चुअली नाम ही चेंज हुआ था, प्रीवियसली उसका नाम कुछ अलग था, होगा यहाँ पे तो देखते हैं। अटल योजना पेंशन योजना इज गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015, primary aimed at providing financial security for workers in our unorganized sector. It is administered by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) and under the National Pension Scheme (NPS). Okay, the scheme is designed to ensure that individuals, particularly those from low-income groups, have access to regular pension income after retirement, reducing their financial dependency on other
अब खत्म कैपेसिटी, चैप्टर 4 नहीं होने वाला है, अब मैं थक गया। अदर्स इन ओल्ड एज। ओके, फीचर्स ऑफ अटल योजना क्या है? फीचर्स इसके, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी बंदा कर सकता है 18 से 40 साल के बीच का। ओके, गारंटी मंथली पेंशन उसको मिलने वाला है 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 डिपेंडिंग अपॉन आपके कॉन्ट्रीब्यूशन पे। कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑटो डेबिट फैसिलिटी, यस, अब से बैंक को अपने बोल के रखो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दो, आपके खाते में से उतना पैसा हर महीने कट जाएगा। नीड नॉट वरी एज सच, आपकी सेविंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऑटोमेटिकली। ओके, गवर्नमेंट को कॉन्ट्रीब्यूशन, यस, गवर्नमेंट भी आपके पास पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उसका 50% गवर्नमेंट देगा। नवंबर के आसपास पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहुत बड़ा इशू हुआ था। अपनी जो है महाराष्ट्र की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुळे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। चाहो तो संसद टीवी पे, यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि सर्च मारो सुप्रिया सुळे ऑन पीपीएफ, मिल जाएगा आपको। ओके, मैं देखते रहता हूँ ये सारी न्यूज़, इसके लिए तुरंत क्लिक हो गया। टैक्स बेनिफिट, यस, गवर्नमेंट ने पैसा लिया है तो आपको टैक्स क्यों लगाएगी? सिंपल लॉजिक है ना, क्या बच्ची तुम लोग बिना। एग्जिट एंड विड्रॉल रूल्स, 60 मिनिमम आपकी एज है, उधर तक आपको पैसा डिपॉजिट करना है। अपॉन रीचिंग 60 years of age, the subscriber will receive the chosen monthly pension for life. In case of the subscriber's death, उसकी बीवी को मिलेगा, लेकिन आधा मिलता है नॉर्मली। ओके, पेड नॉमिनी। एग्जिट बिफोर 60 years जनरली नॉट अलाउड। ओके, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और क्या फर्क पड़ता है, मिनिमम अमाउंट आपकी जितनी कैपेसिटी है उतनी डालना शुरू कर दो। कब तक? 60 साल की उम्र तक। एडवांटेज ऑफ एपीवाई, अटल पेंशन योजना, अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल, रेगुलर पेंशन फॉर लाइफ, गवर्नमेंट बैक सेफ्टी है इसको, स्पाउस एंड नॉमिनी का बेनिफिट है, एनकरेज रिटायरमेंट बेनिफिट, प्रधानमंत्री वाया वदन योजना, नहीं सुना मैंने इसका कभी, ये अभी आई है ना इसके लिए। द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ओके, वय वंदना योजना is a government-backed pension scheme introduced by Government of India to provide financial security and stable pension income to senior citizens. Launched in 2017, the scheme is exclusively designed for senior citizen, मतलब 60 के ऊपर वाले, बराबर है, for age 60 years and above, and is operated by the Life Insurance Corporation. The PMVVY aims to offer assured returns through regular pension payments, protecting retiree from falling interest रेट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन ओल्ड एज। फीचर्स क्या है इसके? एलिजिबिलिटी, आप इंडियन होने चाहिए, 60 साल के ऊपर होने चाहिए। गारंटी पेंशन स्कीम है, बराबर है, आप मंथली ले सकते हो, क्वार्टरली ले सकते हो, हाफ ईयरली ले सकते हो, एनुअली ले सकते हो, जैसे आपको पेंशन चाहिए वैसे मिल जाएगा। बट LIC के पास पहले ही इसकी एग्रीमेंट या पॉलिसी पेपर साइन करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट लिमिट कितनी है? मिनिमम अमाउंट आपका 1,56,658 होना चाहिए, तो आपको मंथली पेंशन मिलेगा 1000। मैक्सिमम 15 लाख का है, मंथली पेंशन आपको मिलेगा 9250। हाँ, यही कुछ मुद्दा था, बराबर। द पेंशन इज पेड फॉर 10 years, ओके, आफ्टर विच द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज रिटर्न टू द इन्वेस्टर। क्या बात है, 15 लाख डाल दो, 10 साल में 92,500 मिलेंगे, और उसके बाद 15 लाख भी वापस मिल जाएंगे। नॉट बैड। देखो, जमा करो और ऐसी चीज़ों में डाल दो। 60 साल की उम्र में आने के बाद 60 साल तक 15 लाख जमा करो, फिर इसमें डाल दो, महीने का 10,000 मिल जाएगा, 9,250। इंटरेस्ट रेट एंड रिटर्न्स अच्छा खासा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 7.4% इंटरेस्ट रेट है। पे आउट्स आपको जैसे चाहिए वैसे, पे आउट्स मतलब पैसा वापस लेना। ओके ओके, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, जैसे चाहो वैसे। टैक्सेशन रूल माफ़ी है, बराबर है। The pension income is taxable as per the individual income tax slab. However, the investment in PMVVY is exempt from GST, okay, making it more beneficial. लोन फैसिलिटी मिल सकती है, जितना आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका 75% आपको मिल सकता है। प्री मैच्योर एग्जिट या सरेंडर वैल्यू, यस, आपको मिल सकता है, चांस है, यू कैन गेट 98% ऑफ योर प्राइस। ओके, मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट कितने साल का है? 10 साल का है, 10 साल बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी मैच्योर हो जाएगी, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है आपको वापस मिल जाएगी। ओके, और पॉलिसी टर्म के दरम्यान अगर आप टपके हो तो आपकी बीवी को या आपके लीगल हायर या नॉमिनी को, जिसको भी आपने नॉमिनी रखा है, उसको वो पैसा मिल जाएगा। एडवांटेज ऑफ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना,
अच्छा ही है बुजुर्गों के लिए, पढ़ लेना समझ में आ जाएगा, नीड नॉट वरी। वापस सारी चीज़ें रिपीटेड है, इसके लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, नाम से ही पता चल रहा है ये सेविंग अकाउंट है, लेकिन किसके लिए है? सीनियर सिटीजन के लिए है, बराबर है। द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स इज अ गवर्नमेंट बैक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम स्पेसिफिकली डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन इन इंडिया। ओके, it offers a safe and reliable investment option with fixed interest rate, ensuring a steady stream of income post-retirement. SCSS is considered one of the best investment avenue for senior citizens due to its attractive return, government guarantee and regular interest payout. जहाँ गवर्नमेंट ने गारंटी ली है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम क्या है, बराबर? This scheme is regulated by Ministry of Finance, that is Government of India, and is available through designated post office and authorized bank across the country. फीचर्स क्या है? आप 60 साल के ऊपर होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट लिमिट आपको कम से कम 1000 है, वहाँ पे कितनी थी? 500, मैक्सिमम आप कितना डाल सकते हो? 30 लाख। द टेन्योर ऑफ द स्कीम इज हाउ मच? 5 years, एक्सटेंडेड बाय 3 years अपॉन रिक्वेस्ट, यानी कि मैक्सिमम कितना है? 8 साल, करेक्ट। द मैक्स टू मैक्स लिमिट, एट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट आपको अच्छा इंटरेस्ट दे रही है, क्वार्टरली दे रही, मंथली दे रही, ईयरली चाहिए, आपको जैसा चाहिए वैसे। गारंटी एंड रिस्क फ्री रिटर्न्स है, प्रीमैच्योर विड्रॉवल एंड क्लोजर पॉसिबल है, गवर्नमेंट आपको पेनल्टी लगाएगी, थोड़ा बहुत कट करेगी। टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C मिल रहा है, अच्छी बात है। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको 50,000 तक इंटरेस्ट माफ है सेविंग्स पे सीनियर सिटीजन को, डायरेक्ट टैक्स में बीकॉम में सेमेस्टर 5 में आप लोगों ने किया हुआ है। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंट हैंडलिंग, खुद भी कर सकते हो, जॉइंट अकाउंट बीवी के साथ भी खोल सकते हो या बीवी हस्बैंड के साथ भी खोल सकती है, दोनों में से कोई एक होगा साइन करने के लिए तो भी चलेगा, और दोनों वॉलंटरी बोल सकते हैं कि हमारा नॉमिनी सो एंड सो होगा, तो दोनों भी अगर पैकअप हो गए तो उनके नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, ठीक है। बेनिफिट्स वही सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, स्टेबल एंड हाई रिटर्न, क्वार्टरली पे आउट, गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी, टैक्स सेविंग, फ्लेक्सिबल टेन्योर, सिंपल प्रोसेस। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये एक वापस है जो 2007 में 95 में आई थी और एक्सपांडेड हुआ 2007 में। ओके, बीपीएल वो कार्ड भी आते हैं राजस्थान साइड पे, तो गरीबों के लिए इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम लागू की गई थी। क्राइटेरिया, आप इंडियन हो, आप 60 years एंड अबव वाले हो, बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हो, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के हिसाब से, एज 80 एंड अबव रिसीव हायर पेंशन अमाउंट अंडर दिस स्कीम। फाइनेंशियल असिस्टेंस यस मिलेगा, गवर्नमेंट आपको पैसा देगी अलग अलग लेवल पे आपके एज के हिसाब से। इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कौन ये कर रहा है? तो रूरल डेवलपमेंट जो अपना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंडर ही आता है। हर स्टेट या हर यूनियन टेरिटरी के हिसाब से आरआरबी वगैरह जो होती है उसके अंडर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। नो कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट, आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत खास नहीं पड़ती। इंटीग्रेशन विद अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स, ऊपर जितने भी आपने डिस्कस किए हुए इनके साथ ये कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, ये तो है भैया, कहाँ से ढूंढेंगे इतने बुढ़े, और बुढ़ों के पास पैसा होता कहाँ पे है? सब कुछ तो इंडियन माँ बाप तो अपने बच्चों के पीछे ही सब खत्म कर देते हैं, खुद के लिए कहाँ बचता है? मेजोरिटी आई एम टेलिंग अबाउट, नॉट ऑल। ओके, देयर आर सम्स जो खुद के लिए भी जीते हैं, बट मेजोरिटी माँ बाप तो बच्चों के लिए ही जीते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके? फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, नो कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी 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 डीबीटी, सोशल वेलफेयर सपोर्ट, रिड्यूस डिपेंडेंस, ई श्रम पेंशन योजना। ई श्रम क्या है? मेहनत, श्रम मतलब मेहनत, तो ये डेली वेज, डेली वर्कर्स वाले जो है उनके लिए है। इस गवर्नमेंट बैक सोशल, मनरेगा मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, वैसे लोगों के लिए ये है। Security initiative aims at providing financial stability and pension benefit to the workers in unorganized sector. Launched under the eShram portal, this scheme ensures that millions of unorganized workers such as daily wage laborers, street vendors, construction workers, agricultural laborers, domestic workers and self-employed individuals received a steady pension after retirement. Since this work lack formal employment benefit like provident fund, gratuity, ये सब उनको नहीं होता ना, जो छोटे मोटे काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, इसके लिए उनको ई श्रम है। ओके, करना क्या है यहाँ पे?
की फीचर्स इसके, एलिजिबिलिटी आप 18 से 14 साल में होने चाहिए, 15,000 के नीचे की आपकी इनकम होनी चाहिए, एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी टैक्स पेयर, प्रोविडेंट फंड उसका ये सब नहीं होना चाहिए, द वर्कर मस्ट पोजेस अ ई श्रम कार्ड, ओके, जो ई श्रम पोर्टल से मिलता है। पेंशन बेनिफिट 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, मंथली 3,000। इन केस ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ द स्पाउस विल रिसीव 50% ऑफ द फैमिली pension. Okay. Contribution and government matching. Yes, workers must contribute a small monthly amount ranging from 55 to 200. Okay. 55 रुपये से 200 रुपया उतना महीने में आपको डालना है, डिपेंडिंग ऑन द एज एंड द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। इंश्योरेंस का कुछ भी आए तो एज पहले मैटर करता है, आपका फिजिकल हेल्थ मैटर करता है। इफ यू आर हेल्दी इनफ योर प्रीमियम इज लेस and you get good benefits, but if you are already a patient your premium will be more and the reimbursed amount will be less beneficial. The government of India matches the workers' contribution, doubling the total savings towards retirement. Contributions are made until the workers reach 60 years, after which they start receiving pension. इंटीग्रेशन विद ई पोर्टल, हम लोगों ने देखा कि ई पोर्टल ई श्रम कार्ड होना चाहिए और ई पोर्टल के थ्रू ही आपको ये सब मिलने वाला है। विड्रॉवल एंड एग्जिट ऑप्शन, यस, वंस यू कंप्लीट 10 years ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। एडवांटेज, रिटायरमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, मिनिमल कॉन्ट्रीब्यूशन है 200 500 रुपया, 55 रुपया 200 रुपया, और फैमिली सपोर्ट है, सीमलेस रजिस्ट्रेशन है, विड्रॉवल फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये चैलेंज है। डिजिटल लिटरेसी इशू, कहाँ पे वो रजिस्टर करने जाएंगे? सोचो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो सब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेगा, स्कैन करो 50 MB 500 MB, इतना KB उतना ये भी, वो थोड़ी होगा उनसे। लो पेंशन अमाउंट 3,000 कमी है, इरेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनकी इनकम फिक्स होती नहीं है। जब इनकम फिक्स नहीं होती तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग फिक्स कहाँ से होगा? लॉजिकल। सो दीज आर द चैलेंजेस विद, क्या था वो, सेविंग, क्या था, ई श्रम पेंशन योजना। ओके, देन बढ़े हम लोग एम्प्लॉयर प्रोविडेंट रिटायरमेंट स्कीम। तो सुपर एन्युएशन पेंशन फंड ये एक है, नाम से ही पता चल रहा है सुपर एन्युएशन मतलब ज़्यादा कटेगा ज़्यादा मिलेगा। द सुपर एन्युएशन इज एन एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम डिजाइन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज आफ्टर रिटायरमेंट। This fund is typically managed by life insurance corporation and financial institution, where employers contribute a fixed percentage of employees' salary towards the pension fund. The objective of this scheme is to ensure a steady flow of income for employees after they retire, helping them maintain their standard of living. Contribution and management आपका एम्प्लॉयर ही कर रहा है, किसके पास कर रहा है? LIC के पास कर रहा है। टाइप्स ऑफ बेनिफिट अंडर सुपर एन्युएशन पेंशन फंड, एन्युटी पेमेंट मिलती है, लमसम विड्रॉ कर सकते हो, डेथ एंड अर्ली एग्जिट बेनिफिट भी आपको है यहाँ पे, टैक्स बेनिफिट है, इधर आपको टैक्स लगता नहीं है, सेमेस्टर 5 TY BCom डायरेक्ट टैक्स ये भी आपने माफ किया हुआ था, बराबर। नेशनल पेंशन स्कीम NPS, इसके ऊपर हम लोग ने बहुत पढ़ा हुआ है, अब मैं ये नहीं पढ़ता, आप लोग देख लो इसको, ये शायद रिपीट हुआ है क्या, ऐसा लग रहा है। ग्रेजुएटी स्कीम, व्हाट इज ग्रेजुएटी? आपने इतने साल कंपनी को दिए, आपके मालिक को दिए, रिटायर हुए, तो आपका मालिक आपके काम पे खुश होकर बड़े दिल से, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ थैंक्स गिविंग, जो आप लोग नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं आ रही किसी की, फाइट मारनी चाहिए एक एक को, राइट? आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड जब आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, दैट इज ग्रेजुएटी। तो इसका भी आप वर्किंग कर चुके हो, डायरेक्ट टैक्स सेमेस्टर 5, इफ नॉट एक ही वीडियो है डायरेक्ट टैक्स का, आप जाके उसको देख सकते हो। ओके, बेनिफिट इसका अच्छा खासा है, नो डाउट इन दैट, लॉजिकल है, पढ़ो, हो जाएगा। डन, थैंक यू, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, थैंक्स मारो, बराबर, लाइक मारो, शेयर मारो, कमेंट मारो, फिर वो हाइप करो, सुपर चैट्स को ज़रा एक्टिवेट करो, बराबर, ये सारी चीज़ें देखो, एक्सप्लोर करो। थैंक यू।